Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Morning, morning, sir. sir. Okay, today we are having a combined session. Okay, 2-3 batches all together we are here. So majorly we are going to discuss a generic topic, which is different types of projects we have in real time. Once you join any organization, maybe I have covered with a few people. It will be a recap for them, but majority of our students have not gone through this topic. Okay, मतलब once you join any organization as a data analyst या कोई भी into Power BI or SQL or any kind of role, what are the different kind of projects you may get? And what is the importance of each project? Okay, how does it work in real time? That is what I am going to explain. Online guys, are you able to see my screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Right. So generally, if I start from, for example, there are multiple service-based companies are there, right? जैसे कि TCS हो गया, IBM हो गया, Wipro, Infosys, okay? So there are multiple service-based companies are there. ये लोग का काम major service काम क्या होता है? What they generally do, they hire people. For example, there are so many people are there. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Yeah, like this, there are so many candidates are there. Out of these three candidates got hired for TCS. ठीक है, ये तीन लोग TCS के लिए काम कर रहे हैं. Okay. Similarly, these three people might be working for some other company like IBM या फिर तो एक ही ओनर का है ताकि ब्रांचेस नहीं एक्चुअली क्या है ना Sohail, if you can mute yourself. ठीक है, उसके बाद we have some more people who are, for example, got hired for some other company like this. Different companies, people will be, they will be having their own resources. ठीक है, right? तो ये लोग कैसे हायर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल दे वांट डेटा एनालिस्ट, दे विल टेक द इंटरव्यू ऑफ डेटा एनालिस्ट एंड whoever got selected, they will take them. ठीक है, अभी now your payroll company is these three people. Payroll company is this one. मतलब salary will be given by TCS, मगर आप काम किसके लिए करते हो? You will be working for a different person. Okay, those people are called clients. These three are Clients, company. These three are payroll companies. Okay, मतलब you are working for मतलब you are hired for these three companies. Three मतलब किसके लिए आप select हो गए. ठीक है, then there will be some client companies. It can be anything. Okay, Nestle, PepsiCo. Okay, बहुत सारे फार्मा कंपनीज हो गए, डॉक्टर रेड्डीज, या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो गया, स्टार हेल्थ, ऑटोमोबाइल कंपनी हो गया, टाटा मोटर्स. Okay, these are FMCG companies, these are medical related one, these are insurance, this is automobile. Like that, there will be so many companies are there. Okay, let's take an example of one company. For example, नेस्ले के पास एक प्रोजेक्ट है, मतलब नेस्ले नीड्स टू एनालाइज देयर डेटा. ठीक है, नेस्ले के पास हर रोज बहुत सारा डेटा जनरेट होता है. ओके, टू एनालाइज दैट वन दे नीड सम रिसोर्सेस. ओके, so what they will do, they will approach these three companies, या फिर बहुत सारे जितने सारे वेंडर्स होंगे,
they will try to approach them कि मेरे पास एक काम है, will you be able to do that? ओके मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स बनाने हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने हैं या फिर सेल्स रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाने हैं. सो मेनी रिपोर्ट्स आर देयर. विल यू बी एबल टू डू? ठीक है. सो इन लोग का काम ही ये है कि वेन एवर दे गेट एनी प्रोजेक्ट दे विल गिव रिसोर्सेज एंड गेट द वर्क डन. ठीक है. तो देन ये नेस्ले बोलेगा मेरा जितना काम है उसके लिए मुझे एक 2 डेटा एनालिस्ट चाहिए, एक डेटा इंजीनियर चाहिए. ओके डेटा इंजीनियर किस लिए चाहिए? बैकएंड का डेटा पूरा क्लीन करने के लिए, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में करने के लिए ही नीड ए डेटा इंजीनियर. फ्रंट एंड में मुझे 2 डेवलपर्स चाहिए, जो कि मुझे डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए एक डेवलपर चाहिए, सेल्स रिपोर्ट के लिए एक और डेवलपर चाहिए. लाइक दिस ही विल आस्क. सो इन दोनों में भी मुझे एक सीनियर रिसोर्स चाहिए, एक जूनियर रिसोर्स चाहिए. एंड डीए डेटा इंजीनियर मुझे सीनियर रिसोर्स चाहिए. दिस इज हिज रिक्वायरमेंट. ओके सो दिस विल नेस्ले विल अप्रोच, मतलब टीसीएस, आईबीएम और विप्रो इन तीनों को अप्रोच करेगा. देन व्हाट दे विल डू, टीसीएस पीपल दे विल से हाँ हमारे पास रिसोर्सेस है, ओके वी हैव द रिसोर्सेस, वी कैन प्रोवाइड, बट वी हैव ए मतलब चार्ज है उसके लिए. ओके सो टीसीएस विल से, फॉर एग्जांपल टीसीएस विल से कि एक सीनियर रिसोर्स के लिए, एक डेटा एनालिस्ट सीनियर रिसोर्स के लिए आई विल चार्ज $25 पर आवर. ओके 1 घंटे के लिए मुझे $25 आई विल चार्ज. जूनियर रिसोर्स के लिए मे बी $15 आई विल चार्ज. सिमिलरली डेटा इंजीनियर का सीनियर रिसोर्स के लिए मे बी आई विल चार्ज $25. दिस इज व्हाट टीसीएस इज सेइंग. ठीक है. देन सिमिलरली देयर विल बी अनदर रेट कार्ड फॉर आईबीएम. आईबीएम बोलेगा कि आई विल चार्ज 30 फॉर दिस गाय, 20 फॉर दिस गाय एंड अगेन 30 फॉर दिस गाय, या फिर 28 फॉर दिस गाय. It all depends on the amount of experience you are having, at what package you have been hired. So many factors are there. ठीक है. उसके हिसाब से they will give the quotation to them. ठीक है. Right. Similarly, Wipro will give their rate card. ठीक है. And along with this rate card, they will also tell ये जो आप project दे रहे हो, to deliver this one, I may need 6 months of time. ओके दे विल आस्क नो आपका एस्टिमेट क्या है, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, ये सब खत्म करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, और 3 रिसोर्स आप जो दे रहे हो उसके लिए आप कितना चार्ज करोगे. राइट. सिमिलरली आईबीएम में से आई कैन डिलीवर दिस इन मे बी 5 months. ओके लाइक दिस Yes, sir. डिफरेंट कंपनीज विल गिव देयर, मतलब पर रिसोर्स का चार्ज क्या है और कितना टाइम में दे कैन डिलीवर. एंड दिस वन विल डिपेंड. कभी कभी दे मे नॉट बी एबल टू गिव दिस एस्टिमेट, टाइमलाइन नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट इज माइट नॉट बी क्लियर. दे आर नाउ ओनली स्टार्टिंग. उनको भी पता नहीं है कि क्या करना है. काम है दे नो, बट व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन दे आल्सो डोंट नो. एट द टाइम मे बी दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज ओनली वैलिड. ठीक है. ऑनलाइन फॉलोइंग. Yes, sir. Yes, sir. ओके सो इट ऑल डिपेंड्स. तो फाइनली क्या होगा, हर एक सर्विस बेस्ड कंपनी whoever are vendors for Nestle, they will give their rate card. ओके उनका कोटेशन वो देंगे. उसके बाद नेस्ले उसके मैनेजमेंट के साथ बैठ के दे विल डिसाइड विथ whom we should go. टीसीएस के साथ जाना है या फिर आईबीएम के साथ जाना है या विप्रो के साथ जाना है या किसी और के साथ जाना है. दे विल ट्राई टू डिसाइड. दे विल बी हैविंग मल्टीपल फैक्टर्स अगेन. ठीक है. कि हमें जल्दी चाहिए तो मे बी वी आर रेडी टू पे लिटिल मोर. ओके हमें जल्दी नहीं है, सो वी वुड लाइक टू हैव समबडी हु इज चार्जिंग लेस. ओके इट ऑल डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स कि उनको किसके साथ जाना है. तो वंस दे डिसाइड कि मुझको इस वेंडर के साथ जाना है या इस वेंडर के साथ जाना है, वंस दे डिसाइड देन दे विल अप्रोच. देन फॉर एग्जांपल दे आर गोइंग विद टीसीएस. ओके तो टीसीएस क्या करेगा, उनके जितने सारे ये सारे डीई रिसोर्सेस है, सॉरी डीए डेटा एनालिस्ट रिसोर्सेस है. Similarly, they will be having DE resources also, they may be having.
राइट। जब आपको हायर किया है, जब टीसीएस आपको हायर किया है, यू विल बी ऑन बेंच मोस्टली। बेंच मतलब क्या है? मतलब यू आर वर्किंग फॉर टीसीएस बट यू आर नॉट इन एनी प्रोजेक्ट। एक्चुअली काम आप कुछ नहीं कर रहे हो। ओके, आप जस्ट यू गॉट हायर्ड फॉर टीसीएस। ठीक है, टीसीएस विल बी पेइंग यू सैलरी, जो भी सैलरी आपको पे कर रहा है, बट अभी तक आपको काम नहीं मिला है। सो दैट पीरियड इज कॉल्ड बेंच पीरियड। ठीक है। सो वंस दे गेट दिस अपॉर्चुनिटी, यहां से कुछ काम है, व्हाट दे विल डू, टीसीएस क्या करेगा, बेस्ड ऑन मतलब आप कब ज्वाइन हुए हो, कुछ फैक्टर्स को लेके they will arrange an interview with Nestle, और एक इंटरव्यू होगा आपका। ओके, they will arrange an interview with the client। ओके, मतलब आप इसके लिए काम करोगे ना, so he will also Yes, test sir. whether you are capable or not। ठीक है, टीसीएस ने आपका इंटरव्यू लेके आपको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगेन विद द क्लाइंट यू विल बी हैविंग वन मोर राउंड कॉल्ड क्लाइंट राउंड। Client round. ठीक है, तो ये क्लाइंट क्या करेगा, आपका इंटरव्यू लेगा। अगर आप उसको पसंद आए देन ही विल सेलेक्ट यू, इफ नॉट देन ही विल टेल टू टीसीएस नो सेंड मी सम अदर कैंडिडेट। अगेन उसका इंटरव्यू लेगा। ऐसे दे विल ट्राई टू फिल्टर, मतलब जितने भी, जब तक उनको नहीं लगेगा कि दिस कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर माई प्रोजेक्ट, दे विल कीप ऑन रिजेक्टिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल P1 यहाँ पे आया, इंटरव्यू दिया बेंच पीरियड से, ये यहाँ पे इंटरव्यू दिया एंड ही गॉट रिजेक्टेड, ही विल अगेन कम एंड ही विल बी ऑन बेंच अगेन। ठीक है, वापस बेंच में आ जाएगा और फिर वेट करेगा फॉर एनी अदर कस्टमर। जब कोई और कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा तब तक उसको वेट करना पड़ेगा, फिर दिस गाय विल अटेंड दिस गाइस इंटरव्यू। Unless until he gets selected for the client round, he will be on bench only। और ये बेंच पीरियड ऐसा नहीं है कि इट विल बी फॉर लाइफ। ओके, ये बेंच पीरियड विल बी फॉर सम टाइम बेस्ड ऑन अगेन ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। आपका सैलरी क्या है, इफ यू आर ए फ्रेशर मे बी आपका बेंच पीरियड थोड़ा ज्यादा होगा, मे बी 6 मंथ्स हो सकता है। 6 मंथ्स तक अगर काम नहीं करोगे तो भी चलेगा। बट इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन विद a package of around 25 lakhs or 30 lakhs and all, they cannot bear you for 6 months। मतलब 6 महीने आपको 2-2 लाख दे के he will not be able to manage। So Yes, sir. at that time period maybe your bench period will be 2 months only। 2 months के अंदर आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट में सेलेक्ट होना है। If you are not able to, then they will send you out। सर ऐसा तो मतलब हर महीना या फिर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स में आता रहेगा क्या क्या? प्रोजेक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड? हाँ, that is their responsibility। That is their responsibility। हाँ, they will be having projects। They will be having projects। ऐसा नहीं कि उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो आप क्या करोगे। या They will be bringing the projects। That is why one main reason is मतलब एक स्टेज जाने के बाद इनिशियल टाइम में आप छोटे कंपनी में काम करो, जैसे भी काम करो, बार बार चेंज करो, इट डजंट मैटर्स। ओके, क्योंकि आपका सैलरी कम होता है, आपको आसानी से हर जगह मिल जाएगा इफ यू हैव द मतलब पोटेंशियल। बट एट वन स्टेज कुछ मतलब 15 साल एक्सपीरियंस हो गया, 12 साल एक्सपीरियंस हो गया, एट द टाइम इवन दो स्मॉलर कंपनीज, देयर विल बी सो मेनी कंपनीज राइट, स्टार्टअप कंपनीज वगैरह होते हैं, even though they are giving you a very good package, still I recommend should not join। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं होंगे। दे माइट बी एक्सपेक्टिंग ए प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके लिए आपको हायर किया है एंड दे आर पेइंग यू 30 लाख 40 लाख 50 लाख दे रहे, बट फॉर सम रीजन दैट प्रोजेक्ट डिडंट केम टू देम। दे वर एक्सपेक्टिंग, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे तो 100% आएगा। दिस गाय माइट हैव अप्रोच्ड समबडी एल्स, उनको कोई और अच्छा लगा तो वो प्रोजेक्ट उनके हाथ से गया। तो व्हेन इट गॉन फ्रॉम देयर दे विल नॉट बी एबल टू पे यू। वो लोग आपको मैनेज नहीं कर पाएंगे, 50 लाख 40 लाख देके बिना प्रोजेक्ट का मैनेज नहीं कर पाएंगे। So immediately they will remove। They cannot wait till another project come। अगर आपका सैलरी कम है then they can manage। So at that situation always you should go with some stable companies जिसके पास मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फॉलोइंग? Yes, sir. राइट।
सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका बेंच पीरियड कितना होता है। पहले टीसीएस का बेंच पीरियड ऐसा था कि मतलब साल मतलब 1 साल 2 साल पीपल वर स्टेइंग विदाउट एनी वर्क, स्टिल दे वर गेटिंग पेड। नाउ इट गॉट चेंज, अभी टीसीएस भी ले ऑफ कर रहा है। दैट ले ऑफ इज नथिंग बट बेंच पे जो है उनको हटा रहा है। इट इज ले ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आप काम कर रहे हो और आपको हटा देगा। इट इज नॉट लाइक दैट। ले ऑफ मतलब जो लोग कंपनी के अंदर है, बेंच पे है, जिनके पास कुछ काम नहीं है और हम लोग ऐसे ही पे कर रहे हैं उनको, कितना पे करेगा, देर इज ए लिमिट, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, ओके, देन दे विल आस्क यू टू गो। ठीक है, Yes, sir. एवरीबॉडी फॉलोइंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, sir. ठीक है। सो नाउ क्लाइंट रोड आपका होगा। वंस यू गेट सेलेक्टेड देन यू विल ज्वाइन दिस कंपनी। ज्वाइन दिस कंपनी मतलब क्या है? मतलब इस कंपनी का आपका क्रेडेंशियल्स मिलेगा, जैसे nestle.com करके आपको क्रेडेंशियल्स मिलेगा। यू आर स्टिल वर्किंग फॉर टीसीएस ओनली, बट TCS is paying you. Nestle is paying to TCS. TCS is paying to you. So for example, एक senior resource के लिए client might be paying to TCS $25. ठीक है, TCS आपको कितना पे करेगा? $25 पे नहीं करेगा। They will be paying somewhere around $12, something like this is your salary. This is their business, no? नहीं तो ये 25 देगा, वो आपको 25 देगा, इसको क्या बचा? कुछ नहीं। हाँ, फिर वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं? These are all businessmen, no? It's a business है, okay? They are taking some amount, in that they are keeping their commission and they are paying it to you. That is how every company works. Yes, sir. ठीक है? हाँ, क्या कर रहा है? तो आप खुद का कंपनी बनाओ ना। तो मतलब टीसीएस की तरफ से जो हमको सैलरी मिलता रहेगा वो हमको मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा ये जो ये देंगे वो उतना मिलेगा। This is your salary. This $12 is your salary. Okay, client will be डॉलर में काउंट होता है क्या? मतलब इन द नहीं, बिग ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो मतलब ऑफर लेटर में जो मिला है वो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली ये सारे कंपनीज यूएस के लिए काम करते हैं, राइट? आप जो भी क्लाइंट होते हैं आपके यूएस के होते हैं, सो दे विल बी पेइंग इन डॉलर्स। मतलब आपको जब मिलेगा वो कन्वर्ट करके मिलेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो like this only they will give, they will charge something and they will give you something else. ठीक है, दिस इज नॉर्मल, इसमें कुछ मतलब एवरीबडी नोस दिस। ठीक है, बट दे डोंट नो कि डिफरेंस कितना होता है। मतलब यहाँ पे 25 है, ये लोग 20 देते हैं या 12 देते हैं, क्या देते हैं, वो डिफरेंस उनको पता नहीं है। द पीपल हु आर वर्किंग हियर दे डोंट नो कि नेस्ले इनको कितना पे कर रहा है। ओके, बट आई वर्कड ऑन रिसोर्स, मतलब इससे पहले मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में था, जहाँ पे देयर वाज ए रिपोर्ट विच आई जनरेटेड फॉर, जैसे कि हम लोग क्लाइंट्स है, आई वाज द क्लाइंट बेसिकली। ओके, वी हैड पीपल फ्रॉम कॉग्निजेंट, वी हैड पीपल फ्रॉम केपीआई पार्टनर्स, इनसीडो करके 3-4 कंपनीज है, उनसे रिसोर्सेज आते हैं। तो फ्रॉम देयर आई अंडरस्टूड कि जितना क्लाइंट पे करता है ना, उससे आधा से ऑलमोस्ट आधा या आधा से कम ही पे करता है। Okay, right. So you will attend interview, you got selected, then you will be starting working with the client. Client will be paying to your company, company will be paying you the salary. ठीक है, बट जब आप बेंच पीरियड में हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सोच रहे हो कि क्लाइंट ज्यादा पे कर रहा है बट टीसीएस हमको या कोई भी कंपनी कम पे कर रहा है, बट जब आप बेंच में हो तब तो टीसीएस को आपके ऊपर से कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है, अगेन पेइंग $12, राइट? जो 2 महीने या 3 महीने आप कुछ भी, आपके नाम से कुछ भी पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, स्टिल द सेम अमाउंट टीसीएस इज पेइंग टू यू, राइट? सो देर आर मतलब कंसिडरेशंस आर देयर, ओके, राइट, बट स्टिल दिस दे विल बी चार्जिंग मोर फ्रॉम क्लाइंट एंड दे विल बी पेइंग लिटिल लेस। ठीक है, जो भी है। सो हाँ, तो यहाँ पे आप आ गए, you joined this guy. So for example, they got a project from TCS, got the project from Nestle, or they have given the resources. 2 data analysts दे दिए और एक data engineer दे दिया। Okay, these 3 people are working here.
Till now clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. उसके बाद once you join the company as a data analyst, I'm talking more about the data analyst, okay? So there can be 3 different projects, okay? You may get a development project, you may get a support project, you may get a migration project, ओके? इन तीनों में ही एक मिलेगा आपको, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है? You may get a development project, you may get a support project, you may get a migration project. Development project मतलब क्या होता है? It can be from scratch. It can be from scratch, or else, for example, I am a developer in one company. मैंने 6 महीने डेवलप किया है, खत्म नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद मुझे कहीं और कुछ अच्छा ऑफर मिल गया, आई लेफ्ट द कंपनी, रिजाइन, आई वेंट टू दैट कंपनी. So in my place you will be coming, for example, मतलब आधे में आप आ रहे हो, but still you are continuing the development only. मतलब रिपोर्ट स्टेबलाइज नहीं हुआ है, मतलब एंड यूजर अभी तक रिपोर्ट देख के डिसीजन मेकिंग स्टार्ट नहीं की है. ओके, फाइनली रिपोर्ट का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा एनालिस्ट? जो रिपोर्ट बनाता है उसका यूज क्या है? For decision making. फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट? सो Yes, sir. जब डेवलपमेंट फेज में अभी तक क्या हुआ है, मतलब आपका डिसीजन मेकिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब एंड यूजर का डिसीजन मेकिंग स्टार्ट नहीं हुआ है. तो ये डेवलपमेंट में क्या होता है, अभी नेस्ले का फाइनेंशियल रिपोर्ट आप बना रहे हो, ओके? तो फाइनेंस टीम में से देयर विल बी 1 पर्सन स्टेक होल्डर, ओके? ये जो स्टेक होल्डर है ये आपको रिक्वायरमेंट देगा कि क्या बनाना है. दिस गाय विल टेल द डेवलपर कि रिपोर्ट में क्या क्या दिखना चाहिए, व्हाट आर द फॉर्मुलास रिक्वायर्ड फॉर ईच वन. जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो आता है दैट विल कम फ्रॉम द स्टेक होल्डर. बेस्ड ऑन दिस गाइस रिक्वायरमेंट यू विल बी बिल्डिंग द रिपोर्ट. इट कैन बी फ्रॉम स्क्रैच, इट कैन बी फ्रॉम द मिडल, ओके? ये क्या होता है, हर बार रिव्यू होता है, मतलब एवरी वीक, एवरी 2 डेज, एवरी 3 डेज आपका रिपोर्ट रिव्यू होता है. ये वो देखेगा कि आपका रिपोर्ट कहां तक गया है, आपके पास कोई क्वेश्चंस है, यू नीड एनी क्लैरिफिकेशंस, ऐसा कौन सी चीज है जो मैं पूछ रहा हूं विच कैन नॉट बी डन इन पावर BI फॉर एग्जांपल, देन दे मे गो विथ अ डिफरेंट अप्रोच, ओके? उसको दिखाने के लिए. सो ऑल द डिस्कशंस विल हैपन विद द स्टेक होल्डर एंड द डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर, ओके? सो दिस इज द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जहां पे रिपोर्ट बिल्डिंग हो रहा है, ठीक है? डिसीजन मेकिंग तक हम लोग मतलब स्टेबलाइज नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. वंस द डेवलपमेंट इज डन, मे बी आपने पूरा रिव्यू लेके बहुत सारे मीटिंग्स हुए, उनको जो जो चाहिए सारे रिपोर्ट आपने बना दिया. ये सब बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको 1 year टाइम लगा, ओके? तो इट टुक 1 year ऑफ टाइम टू बिल्ड द एंटायर रिपोर्ट, जैसे उनको चाहिए वो सब बनाने के लिए 1 year टाइम लगा आपको. तो आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, okay? You build the report, everything is done. Now you shared with the end user, they are taking the decision making, उनका start हो गया. Now what will happen? आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद एक और रिपोर्ट अगर डेवलपमेंट है, अगेन यू विल स्टार्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट 1 रिपोर्ट एज ऑफ नाउ, ठीक है? आपका एक रिपोर्ट का डेवलपमेंट हो गया. उसके बाद क्या होगा? नाउ नेस्ले के पास 2 ऑप्शंस है. जो रिपोर्ट बना ये रिपोर्ट को मेंटेन करने के लिए भी उनको डेटा एनालिस्ट चाहिए. Yes, sir. मेंटेन मतलब क्या है? कल सुबह एक छोटा सा नया रिक्वायरमेंट आया, मतलब एक स्लाइसर ऐड करना है या फिर एक और फॉर्मूला चेंज करना है, कुछ भी आ सकता है, राइट? एनी चेंज कैन हैपन. या फिर शेड्यूल रिफ्रेश फेल हो गया, डेटा नहीं आ रहा है, तो उसको फिक्स करना पड़ेगा, राइट? सो दे नीड पीपल टू फिक्स दैट वन ऑल्सो. So they may keep the same person, मतलब they may keep the same person, TCS को ही रख सकता है, जो बंदा काम कर रहा था डेवलपमेंट में, they can keep them only, or else
दे कैन रिलीज देम। आपका डेवलपमेंट काम हो गया, मतलब जो मेन काम था वो हो गया है, नाउ यू कैन लीव। ओके, आपको मैं प्रोजेक्ट से रिलीज कर दूंगा, बट स्टिल आई नीड समबडी एल्स। सो व्हाट दे विल डू, दे विल अगेन अप्रोच फ्यू अदर कंपनीज, मे बी देयर इज समथिंग एबीसी कंपनी करके कोई है। ओके, दिस गाय इज चार्जिंग फॉर ए सीनियर रिसोर्स ओनली $10। ठीक है, ये वाला कंपनी क्या कर रहा है, एक रिसोर्स के लिए ओनली $10 ही इज चार्जिंग। तो नेस्ले व्हाई ही शुड कीप समबडी विद $30 या $25, जबकि ज्यादा काम नहीं है, डेवलपमेंट हो चुका है, मेजॉरिटी ऑफ द काम हो चुका है, अभी बस मेंटेन करना है। उसके लिए व्हाई आई शुड पे $30 पर आवर, राइट? नॉट रिक्वायर्ड। So what they will do, they will release that person and they will approach this company who is charging only $10, right? इसको लेके आएंगे, इसको लेके आके बोलेंगे देखो ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, फाइनेंशियल एनालिसिस, मेरे पास एक रिपोर्ट बन के रेडी है, इसको आपको मेंटेन करना है, बट इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? लेट अस डू वन थिंग। ओके, अभी इसके पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस रिपोर्ट में क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, कहां से डेटा ला रहे हो, क्या कर रहे हो, दोज इंफॉर्मेशन ही डजंट हैव एनीथिंग, ही इज ए न्यू गाय। Yes, sir. तब फॉर एग्जांपल देयर इज दिस गाय सम एबीसी करके वहां से आया है, ठीक है? तब क्या होगा, जिसने डेवलप किया है, जिसने रिपोर्ट को डेवलप किया है, वो क्या करेगा, ही नीड्स टू गिव ए कीटी। ओके, ये इसको कीटी ट्रांसफर Knowledge करेगा। transfer. क्या है? नॉलेज ट्रांसफर। नॉलेज ट्रांसफर मतलब क्या है, इसने जो भी किया है उस रिपोर्ट में, व्हाट आर द इश्यूज ही हैज फेस्ड, कौन से डेटा सोर्स से डेटा लाया है, सर्वर का नाम क्या है, वर्कस्पेस का नाम क्या है, क्रेडेंशियल्स क्या है, और कहाँ पे पब्लिश हुआ है, कहाँ से शेयर हुआ है, कौन से ग्रुप्स है, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या है, सारे इंफॉर्मेशन इसको देगा जाने से पहले। Okay, before leaving the company, he will be giving all the information to this guy through a मतलब through meeting, also through documentation. Okay, डॉक्यूमेंटेशन बना के उसमें सारा इंफॉर्मेशन रख के उसको हैंड ओवर करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका केटी होने के बाद he needs to manage everything. कल सुबह अगर कुछ इश्यू आता है, this guy is not available, he already left the company. Yes, sir. He already left the company and he joined some other project. Okay, so उसके बाद अगर ये इसको मतलब पूछने की कोशिश भी करेगा, he will not be available, वो मिलेगा ही नहीं, उसका ईमेल आईडी मतलब they have removed it, everything gone from that company, नेस्ले से, और उसका कुछ लेना देना नहीं है। So this guy needs to understand everything from this guy and keep the documentation everything with him. अगर कुछ issue आता है, he need to go through this documentation and then he need to fix it. ठीक है? Yes. So this guy is doing what? This guy is doing a support project. ठीक है, ये वाला काम जो होता है इसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट या मेंटेनेंस बोलता है। ओके, मेजरली सपोर्ट प्रोजेक्ट बोलता है। बट जब ये बंदा जब सेलेक्ट हुआ था, इस कंपनी के लिए जो सेलेक्ट हुआ है, फ्रॉम इसमें से ही सेलेक्ट हुआ था। ओके, टीसीएस ने जैसे सेलेक्ट किया था, जैसे इंटरव्यू लेके सेलेक्ट किया था, इस कंपनी भी वैसे ही सेलेक्ट किया था। जब टीसीएस के थ्रू ये आया, इसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लिया गया। जब इस कंपनी से आया, उसको सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए लिया गया। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, सपोर्ट Yes, बनने के लिए डिफरेंट नॉलेज चाहिए, डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट नॉलेज चाहिए, ऐसा नहीं है, दोनों का नॉलेज सेम ही है। दैट गाय कैन ऑल्सो डू डेवलपमेंट, दिस गाय कैन ऑल्सो डू द सपोर्ट। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको प्रोजेक्ट कौन सा मिला है। ओके, Yes, sir. फॉलोइंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो दिस गाय नाउ विल बी डूइंग द सपोर्ट प्रोजेक्ट, ये मेंटेनेंस करेगा।
नाउ डेवलपमेंट में और सपोर्ट में क्या डिफरेंस है, मतलब काम ज्यादा कहाँ पे है? डेवलपमेंट में ज्यादा है ना, Development. डेवलपमेंट में ज्यादा है। यू विल बी डूइंग फ्रॉम एवरीथिंग, नो, आपको सब कुछ करना है। सपोर्ट में क्या है, जब इश्यू है, जब कुछ नया चीज है तभी आपका काम है। बट डेवलपमेंट में क्या होता है, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी तक इसको लेके डिसीजन मेकिंग कोई स्टार्ट नहीं किया। नोबडी स्टार्टेड द डिसीजन मेकिंग, अभी भी ये स्टेबल नहीं है। तो पीपल आर, इफ अगर एक दिन लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया, दैट शुड नॉट बी ए बिगर इश्यू। बट सपोर्ट में यू डू नॉट हैव टाइम। अगर कहीं पे कुछ ब्रेक हुआ है, मतलब डेटा मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, या फिर नया डेटा नहीं आया, रिफ्रेश फेल हो गया, कुछ भी इश्यू आ गया, ये स्टेबलाइज हो चुका है, पीपल आर वेटिंग फॉर योर रिपोर्ट टू मेक डिसीजन मेकिंग, दिस हैज टू बी फिक्स्ड एज सून एज पॉसिबल। इसके लिए टाइम नहीं है, इमीडिएटली यू नीड टू फिक्स इट बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी। ओके, ये लोग मतलब ये नेस्ले वाले टिकट रेज करते हैं कि ये डेटा करेक्ट नहीं आ रहा है, मेरे पास एक्सेस नहीं है, या फिर रिफ्रेश फेल हुआ है। सो दे विल बी रेजिंग P1 P2 P3 ऐसे करके टिकट रेज करते हैं। C1 C2 C3 मतलब क्रिटिकल 1, क्रिटिकल 2, क्रिटिकल 3, सबका एक टैट टाइम होता है। ओके, टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं, TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम होता है कि अगर आपका मतलब प्रायोरिटी 1 टिकट है, P1 प्रायोरिटी 1 टिकट है, then it has to be fixed in 3 hours or 2 hours. Priority 2 टिकट है, it has to be fixed in 1 day. Priority 3 है, it can be fixed in 48 hours. ऐसा करके they will be having, based on that you need to act। क्यों ऐसा क्यों होता है? अगर आपके पास 5 टिकट है, you need to understand कि कौन सा पहला मुझे करना है। P1 का पहला आपको सॉल्व करना है, then you need to come to P2, then you need to come to P3. Okay, so those things and all they will explain you. So basically what I am trying to tell you here is, if you are in a support project, आपका काम कम होता है, but जब काम आएगा you have to fix it immediately. टाइम नहीं है, क्योंकि people will be waiting, उनके पास काम नहीं है जब तक आप फिक्स नहीं कर रहे हो। Morning I need to open the report, I need to look into your report, and then I need to make the decision for the rest of my day. मुझे नेक्स्ट 8 आवर्स क्या करना है आपके रिपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, मगर आपका रिपोर्ट रॉन्ग डेटा दे रहा है, तो आई डू नॉट हैव वर्क, इसका मतलब। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम कि आपको जल्दी फिक्स करके उनको देना है। फॉलोइंग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इट ऑल डिपेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। दे मे बी पेइंग लेस, सो दे विल टेक ए जूनियर वन। एक बार आप ज्वाइन होने के बाद सीनियर जूनियर कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिला है, उसमें क्या है। Yes, sir. cannot say कि मतलब मैं सीनियर नहीं हूँ, आई कैन नॉट डू दिस वन। बट दे विल, मतलब जो कंपनी है दे विल थिंक कि उनको लगेगा कि यार मैं अगर इफ आई एम टेकिंग ए जूनियर वन, मेरे क्रिटिकल इश्यूज है, फाइनली उसको सॉल्व करके देना है। अगर वो कम पैसे देके जूनियर को हायर करेगा, वो कर नहीं पाएगा, देन इट इज फाइनली किसको इफेक्ट कर रहा है? क्लाइंट को ही इफेक्ट कर रहा है, राइट? Yes, sir. दे विल थिंक बिफोर ऑल दिस थिंग, दे विल थिंक एंड देन मेक ए डिसीजन। नहीं नहीं, मे बी 2 जूनियर रखते हैं बट एक सीनियर चाहिए हमें। अगर वो नहीं कर पाए, देयर शुड बी 1 पर्सन हु कैन डू इट। ओके, सो दे विल अकॉर्डिंगली टेक ए कॉल। ओके, Yes, sir. तो डेवलपमेंट में आपका ज्यादा काम होता है, आपका लर्निंग ज्यादा होता है, आपके पास नए नए सिचुएशन आते हैं, एंड यू विल लर्न मोर थिंग्स इन डेवलपमेंट, रिपोर्ट डेवलपमेंट आप सीखोगे। वेयर एज सपोर्ट में आपका काम कम होता है, एंड आपका काम कम होता है, बट यू डू नॉट हैव मच टाइम। ओके, यू नीड टू फिक्स द इश्यूज एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पे भी लर्निंग होता है, यहाँ पे डिफरेंट लेवल का लर्निंग होता है। मतलब दिस विल बी मेजरली ऑन योर पावर BI डेस्कटॉप। डेवलपमेंट का जो भी आपको करना होता है, मेजरली पावर BI डेस्कटॉप में आपका लर्निंग ज्यादा होता है। सपोर्ट में आपका मेजर लर्निंग पावर BI सर्विस में होता है। ओके, पावर BI सर्विस में कुछ ब्रेकेज हो गया, या फिर ऐप बनाना है, किसी को ऐड करना है, नए नए इश्यूज आते हैं यहाँ पे भी। ओके, हियर ऑल्सो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेजरली इट विल बी ऑन सर्विस पार्ट। ठीक है? इसका मतलब एक टाइम पीरियड तो रहता है ना, ऐसा नहीं कि सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए तो आप पूरा रख लेंगे, बट इसका भी तो जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट के लिए
आप जैसे बोले एक ईयर लगा उसको ये सब किया, तो वैसे सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए किसी को लाएंगे तो उसका भी लिमिटेड टाइम रहेगा। नहीं, जब तक वो रिपोर्ट काम कर रहा है तब तक उनको सपोर्ट चाहिए। तो जनरली डेवलपमेंट फॉर प्रोजेक्ट विल बी लेसर ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन कम होता है। सपोर्ट प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन विल बी वेरी लॉन्ग। I have seen people working in a support project for 10 years, 8 years, 7 years. Okay. But I don't recommend to stay in a support project for that time. आपका पूरा डेवलपमेंट का टच चला जाएगा। नेक्स्ट आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलेगा, आप कर नहीं पाओगे। ओके, पीपल Yes, विल sir. स्टे इन सपोर्ट प्रोजेक्ट, उनका कंफर्ट जोन होता है, ज्यादा काम नहीं है, आराम चिल मार रहे करके रह जाएंगे। बाद में जब वहां से बाहर आने की कोशिश करेंगे, आ नहीं पाएंगे। ओके, फॉलोइंग? मतलब आपका Yes, sir. Yes, sir. तो आपका रिकमेंडेशन रहेगा कितना टाइम के अंदर हमको वहाँ पे रहना है कि निकलना कहाँ पे? सपोर्ट पे? सपोर्ट प्रोजेक्ट में सपोर्ट निकलना आपके हाथ में नहीं है। यस सर। Once you join any project, no, if you want to get out of that project, it is very difficult. अगर आप काम कर रहे हो, you are handling the tickets properly, आप सपोर्ट कर रहे हो, आपका मतलब जो भी इश्यूज आप फिक्स कर रहे हो, why he will leave you? He will not leave you ना, उसका काम चल रहा है ना। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे निकलना है, still they will not leave you. ओके, बहुत प्रेशराइज रखेंगे कि नहीं आपका क्या चाहिए, ये वो सब बात करेंगे, बट कुछ नहीं करेंगे, आपको करना है। ओके, तो सर ये जो डिसीजन होगा मतलब हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमको डेवलपमेंट में जाना है कि सपोर्ट में जाना है। आप जाने से पहले डिसाइड कर पाओगे। ओके, एक अच्छा। बार जाने के बाद देन यू कैन नॉट डिसाइड। अगर आपके पास इंटरव्यू कॉल आते हैं, हाँ। आपका रिसोर्स मैनेजर एक होता है, ओके, हम्म। जो कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल करता है। ओके, वर्कफोर्स मैनेजर बोलते हैं, हम्म। WFM बोलते हैं, हर एक कंपनी में अलग अलग नाम देते हैं। ये जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल करता है, आपको यहीं पे पूछना पड़ेगा, ये जो प्रोजेक्ट के लिए आप मुझे मतलब इंटरव्यू ले रहे हो, इट इज फॉर व्हाट? सपोर्ट के लिए ले रहे हो या डेवलपमेंट के लिए ले रहे हो? अगर वो बोलेगा सपोर्ट, आप बोलेगे नहीं नहीं मुझे सपोर्ट में नहीं जाना है, मुझे डेवलपमेंट में जाना है, देन ही विल नॉट मतलब फोर्स नहीं करेगा कि आप मतलब इंटरव्यू अटेंड करो। बट उसका भी लिमिट है। आप 6 महीने ऑलरेडी बेंच पे हो, अभी भी आप बोल रहे हो मुझे डेवलपमेंट में जाना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। Yes, ओके, sir. इनिशियल पीरियड में आप 2 वीक्स 3 वीक्स के अंदर आप बोल रहे हो, दैट इज फाइन। बट 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, देन यू डू नॉट हैव चॉइस। वाई? बिकॉज अगर आप बोलोगे नहीं मुझे डेवलपमेंट में चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, देन दे विल रिलीज यू, दे विल रिमूव यू। Yes. तो अगर लेकिन इसको मान सर मेरा एक क्वेश्चन था। कितना मुश्किल है क्या बोलूं, इसका तरीका। हाँ, सर मैंने बोल रहा था कि ये जो तीनों के लिए कंपनी अलग अलग हायर करेगा या नहीं 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 नहीं, ये तीनों रोल, ये तीनों प्रोजेक्ट के लिए। 1 पर्सन ही करेगा? क्या सर ये तीनों के लिए 1 पर्सन ही करेगा काम? तीनों मतलब? जो जो डेवलपमेंट सपोर्ट माइग्रेशन। हाँ, एक ही बंदा सबको, तीन एक ही डेटा डेटा एनालिस्ट को सब आना चाहिए। सर सेम ही है ना। आप सपोर्ट भी आप वही टूल में ही कर रहे हो ना, पावर भी नहीं कर रहे हो ना। सर ओके एक सर। क्वेश्चन था। हाँ, सर दोनों बंदे सिलेक्ट हुए, एक डेवलपमेंट के लिए और एक सपोर्ट के लिए। डेवलपमेंट एक ही टाइम में दो बंदे सेलेक्ट नहीं होंगे, आइदर वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगा या फिर सपोर्ट होगा। अगर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के लिए सेलेक्ट करेंगे, अगर सपोर्ट है, सपोर्ट के लिए सेलेक्ट करेंगे। और ठीक है सर, जो मतलब सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर। हाँ, वो जो डेवलपमेंट के लिए जो सिलेक्ट हुआ वो तो डेवलपमेंट कर देगा, उसके बाद तो कोई ना कोई उसको सपोर्ट करेगा, उसके लिए तो कंपनी फिर रिक्वायरमेंट निकालेगा। वॉइस सुनाई नहीं दे रहा। तो डेवलपमेंट के लिए तो वो बंदे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद भी तो सपोर्ट के लिए भी बंदे चाहिए। डेवलपमेंट खत्म होने के बाद वो बंदा फिर और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में चला जाएगा, उसको चलाने के लिए सपोर्ट के लिए तो फिर भी एक बंदा चाहिए। तो सपोर्ट के लिए दे आर अप्रोचिंग ए डिफरेंट कंपनी ना। ये सर अलग अलग डेवलपमेंट के लिए अलग हाँ, अलग इट ऑल डिपेंड्स। ऐसा नहीं कि हर बार अलग प्रोजेक्ट अलग कंपनी से लाना है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अलग सपोर्ट में मेरा काम कम है, व्हाई आई शुड गो विथ ए प्रीमियम वन, आई शुड गो विथ ए लेसर प्रीमियम, जहां मुझे कम खर्चे करना पड़ेगा, राइट? ये सर। मैं एक घर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मुझे इंटीरियर का काम करवाना है, अच्छा करवाना है, देन आई विल गो विथ ए रिनोन्ड नेम।
उसके Yes, बाद sir. मुझे सीलिंग करवाना है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। उसके लिए Yes, व्हाई sir. आई शुड गो विथ ए वेरी प्रीमियम वन? आई विल गो विथ ए लोकल गाय हु विल डू द सेम थिंग फॉर मी, Yes, sir. राइट? Yes, sir. सेम थिंग हियर आल्सो दे आर डूइंग। Yes, sir. जिसका नेस्ले के लिए डेवलपमेंट खत्म हो गया वो फिर चला जाएगा टीसीएस के लिए, वो बेंच पर रहेगा फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने का, राइट। जब तक नहीं आया है। ठीक है सर। सर ऐसे सिचुएशन में भी माइट बी लाइक नेस्ले के पास 2 प्रोजेक्ट है, जिसमें वो एक डेवलपमेंट के लिए खुद रहा है एंड दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हो सपोर्ट सकता है, मतलब इट डिपेंड्स कि आपका रिपोर्ट डेवलप हो चुका है। फॉर एग्जांपल 2 रिपोर्ट है, एक फाइनेंशियल एनालिटिक्स का रिपोर्ट है, एक एचआर एनालिटिक्स का रिपोर्ट है। एचआर एनालिटिक्स ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसके लिए उसको सपोर्ट चाहिए, दे विल ब्रिंग समबडी एल्स। फाइनेंशियल एनालिटिक्स अभी भी डेवलप हो रहा है, सो दे नीड ए डेवलपर फॉर इट। सर इस टाइम पे एक ही कंपनी से लोग जा सकते हैं या फिर वो जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। सर और जो ये डॉक्यूमेंटेशन जो डेवलप किया तो उसमें वो जो टैक्स फॉर्मूलास जो फंक्शन जो भी लिखा रहेगा वो सब भी उसमें अवेलेबल रहेगा या फिर उतना जरूरी नहीं होता है, हाई लेवल पे चाहिए। अगर उसको टैक्स फॉर्मूला जानना है, रिपोर्ट तो है ही उसके पास, यू कैन गो थ्रू द रिपोर्ट। वहां पे आई विल टेल यू कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाते हैं वंस यू कंप्लीट एवरीथिंग। ओके, ये आपको मतलब डेटा सोर्स कहाँ से आ रहा है, उसका क्रेडेंशियल्स क्या है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स है तो सबका इंफॉर्मेशन आपको देना है। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी नीड टू पुट इनटू दैट वन। आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट दैट वन। ओके, राइट राइट। सो सर, हाँ, रैंडमली एक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन पीरियड क्या होता है? it all depends on the kind of requirements you are having. आपका requirement कम है तो there are projects which we can complete in 3 months, 6 months also. But आपका requirement is coming continuously, okay, then it will go for 2 years, 3 years also. हो सकता है। Right now I am working in a project from 2.5 years, पूरा development ही है। Okay, so it all depends. हाँ, मैं बोली आप डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं सिस्टम। नहीं समझा। मैं बोली आप जो काम कर रहे हैं कंपनी में वो हाँ डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं ना? हाँ, right now the one which I am in, that is on development. I have done the support projects also, I have done the migration also, but right now what I am doing is into development. ठीक है? ठीक है सर। सर अगर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में है और वो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है, 2 साल या 3 साल वाला, अगर उसके अंदर आप कंपनी स्विच करना चाहोगे तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते? You can do it, it's up to you ना, it's up to you। आप जब चाहो तब छोड़ सकते हो, nobody is going to stop you। There will be a notice period, उसको आप सर्व करके निकलना है, that's all। अगर आप उसी कंपनी में हो तो वो प्रोजेक्ट छोड़ नहीं सकते, अगर आप डायरेक्ट कंपनी चेंज करोगे छोड़ तो हो सकते सकता है। हो, ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट लीव इट, बट उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यू नीड टू गो टू वेरी हाई लेवल कि मुझे यहाँ पे नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, यू नीड टू गिव सम रीजंस। ओके, प्रॉपर रीजंस आपको देने हैं। फॉर एग्जांपल आपका हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, यू कैन नॉट वर्क ऑन नाइट टाइम, okay, you may have to show the supporting documents कि I cannot work in this project because of this reasons, so I want to come out of this one and I will go with a different project जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, जो कि मॉर्निंग टाइम में चल रहा है, या दुबई का है जो कि मॉर्निंग टाइम में चल रहा है। ओके, लाइक दिस यू नीड टू गिव प्रॉपर थिंग, बट ये सब थोड़ा मतलब इट रिक्वायर्स टाइम, इमीडिएटली नहीं होगा। Sir, हम्म, as a fresher, which one is better, development, support, or migration? ऑलवेज डेवलपमेंट इज बेटर, बट दिस विल नॉट बी, मतलब ये कंपनी पे भी मतलब डिपेंड करता है। एज माय अंडरस्टैंडिंग में जैसे इफ यू आर वर्किंग फॉर IBM एंड ऑल, ओके, यू विल गेट मोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, इफ यू आर वर्किंग फॉर कॉग्निजेंट हो गया, एक्सेंचर हो गया, यू विल गेट मोर सपोर्ट प्रोजेक्ट्स। यस सर। Okay, it depends. Generally IBM charges more when compared with CTS या अलग कंपनीज, क्योंकि उनका डेवलपमेंट स्ट्रांग है। और CTS वाले क्या करते हैं ना, ज्यादा दे विल टेक सपोर्ट प्रोजेक्ट्स। ओके, सो इट ऑल, ऐसा नहीं है कि CTS में बिल्कुल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है नहीं, वहां पे भी है,
बट ज्यादा सपोर्ट है। बीपीएम कंपनी सर मेनली है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? सर राइट, नाउ द थर्ड वन इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब क्या होता है? ऑलरेडी फॉर एग्जांपल नेस्ले का रिपोर्ट्स जो है ऑलरेडी डेवलप्ड है, सब डेवलप्ड है, मगर कहाँ पे डेवलप्ड है? टैब्लू पे डेवलप्ड है। दे वर यूजिंग टैब्लू एज ए बीआई टूल, दे वर यूजिंग टैब्लू। उसके अंदर वो लोग फाइनेंशियल एनालिसिस, एचआर एनालिटिक्स, सब कुछ रिपोर्ट वो लोग वहां पे बना के रखे हैं, एंड पीपल आर यूजिंग दैट वन। बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम उनका मैनेजमेंट ने एक डिसीजन किया है कि अभी मुझे और टैब्लू के साथ नहीं जाना है। ओके, आई वांट टू माइग्रेट टू पावर बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। मे बी टैब्लू सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ज्यादा है, मे बी टैब्लू का मतलब रिसोर्सेज मिल नहीं रहा है। ओके, मे बी पावर बीआई का कॉस्ट कम है, रिसोर्स मुझे मिल रहे हैं। ओके, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। ओके, बेस्ड ऑन दैट फैक्टर दे विल टेक अ डिसीजन, मुझे टैब्लू से पावर बीआई को माइग्रेट करना है या फिर कॉग्नोस बीआई से पावर बीआई को माइग्रेट करना है। हाँ, क्या टाइम डिपेंड, कितने रिपोर्ट्स है, कितने रिपोर्ट्स को माइग्रेट करना है। एक जगह 40 रिपोर्ट्स माइग्रेट करना है तो एक टाइम लगेगा, एक जगह 100 रिपोर्ट्स माइग्रेट करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा, एक जगह उनके पास 20 रिपोर्ट है कम टाइम लगेगा। कितने रिपोर्ट को माइग्रेट करना है वो डिपेंड करता है, और वो रिपोर्ट का क्रिटिकलिटी क्या है। आसान रिपोर्ट से कम टाइम लगेगा, डिफिकल्ट रिपोर्ट से ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसे बोल नहीं सकते। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब in my earlier project I have migrated from Cognos BI to Power BI, 48 reports है। ठीक है, 48 reports है, simple reports they were, not complicated, simple reports were there, 48 reports were there। I was the TL and I had 2 resources, मतलब 2 junior थे, मैं टीम लीड था। ठीक है, तो हम तीनों मिलके this 48 reports we have delivered in 60 days। ओके, 2 months का पीरियड था। दूर से बोलो। ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स। ये मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि उनको किसके साथ जाना है, वो लोग क्या वैल्यू प्रपोजल दिए है, कितना एक्सपेंस है, कितना टाइम है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस कंपनी में यही है वही है, ऐसा कुछ नहीं, इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, फॉलोइंग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जनरली Yes, मतलब sir. हाँ, सो माइग्रेशन का टाइमलाइन भी नंबर ऑफ रिपोर्ट्स कितने हैं, उसका क्रिटिकलिटी क्या, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आई हैव सीन जनरली क्या होना चाहिए, डेवलपर के साथ कांटेक्ट करके डेवलपर को पूछना चाहिए कि आपको कितना टाइम लगेगा ये सब माइग्रेट करने के लिए। बट जो सेल्स टीम होता है, मतलब जो प्रोजेक्ट लाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम से जो होते हैं, वो लोग आजकल कैसे करते हैं, अभी डेवलपर तो सेलेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट मिलेगा तब डेवलपर को सेलेक्ट करेंगे, राइट? तो अभी तक डेवलपर हमारे पास नहीं है, सो दे विल टेक समबडी, मतलब कोई ऐसा ही जो सीनियर रिसोर्स है उसको कांटेक्ट करके बोलेंगे इतना सारा रिपोर्ट है, जनरली एस्टिमेट दो कितना टाइम लगेगा। तो ही में से कि ये 4 महीने लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल ही से 4 months इट विल टेक। बट वो सेल्स टीम को पता है अगर मैं उसको 4 महीना बोलूंगा वो प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिलेगा। विद द सेम प्राइस दे आर लुकिंग समबडी हु कैन डिलीवर इन 2 months, 2.5 months। तो वो लोग ऐसे ही कमिट कर देंगे कि 2.5 months में हम लोग आपको दे देंगे। ठीक है, टू गेट द प्रोजेक्ट, उनको प्रोजेक्ट लाना है ना, पैसे लाना है, सो दे विल से, आप जनरली बाहर भी सेल्स पर्सन व्हाट दे विल डू, दे वुड से समथिंग एंड ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट, वो सही हो गलत हो जो भी हो बाद में देख लेंगे करके। ओके, सिमिलरली हियर आल्सो पीपल व्हाट दे विल डू टू गेट ए प्रोजेक्ट, दे मे गिव, मतलब जो टाइमलाइन वो थोड़ा कम करके भी दे सकते हैं टू गेट द प्रोजेक्ट।
एक बार प्रोजेक्ट आने के बाद वो बोलेंगे नहीं ये फिक्स्ड प्रोजेक्ट है, फिक्स्ड बजट प्रोडक्ट है, मतलब हमारे पास 2 महीने का टाइम ही है। वी डू नॉट हैव मोर देन 2 months ऑफ टाइम टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट। और जब आपका इंटरव्यू होगा, मतलब क्लाइंट राउंड या फिर जो भी इंटरव्यू होगा, तब बोलेंगे देखो हमारे पास 2 months है, कैन यू डिलीवर। आपको प्रोजेक्ट चाहिए, ऑलरेडी यू आर इन बेंच, ओके, आप 2 महीने से बेंच पे हो, आपको प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप भी हाँ बोल देते हो। अगर ये नहीं मिला, दूसरा प्रोजेक्ट कब मिलेगा, वेट करना पड़ेगा। तो अगर वो टाइम लगेगा, देन दिस कंपनी में आस्क मी टू लीव, सो यू विल से ठीक है 2 महीने में मैं दे दूंगा करके कमिट कर दोगे, देन द प्रेशर विल बिल्ड ऑन यू। ठीक है, जब 8 घंटे का काम आप 10 घंटे हर रोज करना पड़ेगा। लाइक दैट प्रेशर जनरली हैपेंस इन IT। ठीक है, तो बेसिकली माइग्रेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी जो रिपोर्ट्स है उसी को हम एक नए टूल में बना रहे हैं। मतलब दिस इज ऑल्सो ए डेवलपमेंट ओनली। आप फिर से डेटा मॉडल बनाओगे, फिर से कैलकुलेशन बनाओगे, फिर से विजुअल्स बनाओगे, सब कुछ आप कर रहे हो, बट आपके पास एक रेफरेंस है ऑलरेडी कैसा होना चाहिए, आपको दिख रहा है दूसरा टूल में। एक्सेल में भी हो सकता है, एक्सेल से आप और वे माइग्रेट कर रहे हो, एक्सेल में ऑलरेडी वो विजुअल्स है, कहाँ पे कौन सा विजुअल होना चाहिए सब कुछ ऑलरेडी क्लियर है, बस उसी को फिर से आपको रिप्लिकेट करना है। तो माइग्रेशन में क्या होता है, ऑलरेडी थिंग्स आर देयर, लॉजिक्स आर ऑलरेडी बिल्ट, ओके, एवरीथिंग इज ऑलरेडी बिल्ट, बस उसको आपको पावर BI में कैसे करना है, दैट यू नीड टू डू इट बाय योरसेल्फ। तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ओनली, बट यू हैव ए रेफरेंस की कैसे बनाना है। ओके, यस सर। Yes, sir. क्लियर। यस सर। और सर जरूरी थोड़ी कि पावर BI पे वो मतलब माइग्रेट करे, हो सकता है वो पावर BI पे पहले थे या फिर टेबलू पे पहले थे, कोई और सॉफ्टवेयर पे माइग्रेट कर रहा हूँ। हाँ हो सकता है, बट जिस पे माइग्रेट कर रहे हो वो डेटा एनालिस्ट चाहिए। अगर they are trying to migrate from Tableau to Power BI, they will hire a Power BI resource. If they are migrating from Cognos to Tableau, then they will hire a Tableau resource. तो ठीक है, सर जैसे मान के चलो मेरे को मतलब पावर BI मैंने सीखा है, या फिर मान के चलो मुझे दूसरी कंपनी में पावर BI करता था, अभी उनको हायर कर रहे हैं कॉग्नस BI के माइग्रेशन के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या वो मतलब किसी को ऐसे हायर कर लेंगे? मुझे बाइक चलाना आता है, कार चलाना नहीं आता है, तो आप मुझे कार के लिए ड्राइवर सेलेक्ट करोगे? नहीं। सेम, अगर मेरा माइग्रेशन टैब्लू पे है, आपको टैब्लू नहीं आता है, मैं आपको क्यों लूं? ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है वी नीड टू सेटिस्फाई दैट वन, राइट? यस सर। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस प्रोजेक्ट या फिर होल प्रोसेस के ऊपर, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? नो क्या सर इन जनरल मतलब हर एक BI टूल में वो जो सर लॉजिक्स होता है वो सब अलग अलग ही लिखा जाता है। हाँ, लिखना अलग होता है, लॉजिक सेम होता है, काइंड ऑफ फंक्शंस यू मे बी यूजिंग माइट बी डिफरेंट, बट लॉजिक सेम ही रहेगा ना। आप इफ कंडीशन यहाँ पे लिखोगे या फिर टैब्लो में लिखोगे, पावर BI में लिखोगे, पाइथन में लिखोगे, जहाँ पे भी लिखो लॉजिक लॉजिक ही है। अच्छा वो हाँ, लिखने का कैसे लिखना structure है, हाँ, दैट विल कीवर्ड्स विल चेंज, ज्यादा चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। Okay, that's all I wanted to cover. If you have any questions, you can ask me. कुछ बेनिफिट हुआ या कुछ नहीं? यस सर, Yes, sir. मतलब एक पता चला कि Yes, sir, कैसे वो है। वर्किंग होता है एक्चुअल में। सर Yes. जब रियल टाइम में हम लोग काम करेंगे तो मोस्टली क्या पावर BI में काम होगा या SQL में? What role they are hiring? If they are hiring for a Power BI developer, your work will be more on Power BI. Okay. So generally SQL
का मतलब इफ यू आर ए डेटा इंजीनियर आपका काम सीक्वल पे होगा, इफ यू आर ए पावर बी डेवलपर आपका काम सीक्वल में होगा बट विल बी लिमिटेड, मतलब 20-30% ही होगा, 20% ही होगा। हाँ, मतलब जो रिपोर्ट आप बना रहे हो उसको टेस्ट करने के लिए जनरली डेटा इंजीनियर विल हेल्प यू, बट इफ इज नॉट देयर और फॉर सम रीजन ही इज बिजी, then you need to write the SQL queries by your own and you need to test your numbers. Yes, sir. Okay, as a data analyst, if you are asking कितना काम कहाँ पे होगा, I would say कि ज्यादातर काम आपका पावर BI में होगा। If you ask me, अभी जो प्रोजेक्ट में मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ 95 to 98% मेरा काम पावर BI में ही होता है, ओनली 2 to 5% काम मेरा SQL में होता है। उसको भी मैं अवॉइड कर सकता हूँ अगर चाहूंगा तो, बट स्टिल आई जस्ट डू इट। और सर एक्सेल का कुछ काम नहीं है अभी आपके प्रोजेक्ट में? नो, मतलब इफ यू आर वर्किंग फॉर एमएनसीज काइंड ऑफ थिंग एंड ऑल, आपका मतलब एक्सेल में ज्यादा जनरली कुछ काम नहीं होता है, बट यू कैनॉट से आई डू नॉट नो एक्सेल। अगर जब किसी ने कुछ छोटा मोटा एनालिसिस करने के लिए बोला है देन यू नीड टू डू बाय योर ओन, यू कैनॉट से कि मुझे एक्सेल नहीं आता है। ओके, एनीथिंग एल्स? बहुत सारे में तो जैसे देखिए कि डेवलपर एक रिपोर्ट डेवलप किया एंड प्रोजेक्टर में वो रिपोर्ट शो करके कोई मतलब एनालिसिस करवा रहा है, इतने सारे टीम जन बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि ये सब हो रहा है। तो सर वो जो पर्सन जो बता रहा है वो एक्चुअली में उसका रोल क्या है, मतलब वो बस इतना बताएगा या फिर वही डेवलपर है उधर का? Depends. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग ए प्रेजेंटेशन टू फ्यू पीपल, मे बी दे आर फ्रॉम द क्लाइंट साइड, मैं उनको समझा रहा हूँ कि इस रिपोर्ट को कैसे यूज करना है, कहाँ पे क्या है, कौन से पेज में क्या है, एक पेज से दूसरे पेज कैसे नेविगेट करोगे। मे बी आई एम टेलिंग देम हाउ टू यूज द रिपोर्ट, मे बी आई एम गिविंग ए केटी टू द सपोर्ट टीम कि ये मेरा रिपोर्ट है, ऐसा ऐसा मैंने मैंने बनाया है, आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि अब मैं निकल रहा हूँ, नाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस रिपोर्ट। तो ऑडियंस कौन है डिपेंड करता है कि मैं किसको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। सर इधर जो स्टेक होल्डर और डेटा एनालिस्ट के बीच बिजनेस एनालिस्ट प्ले हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अच्छा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। There can be a data analyst, sorry, business analyst. There can be a PO. PO means product owner. Okay, जो मतलब काइंड ऑफ आर्किटेक्ट काइंड ऑफ, जो डिजाइन करता है ये पूरा कैसे करना है। तो देयर कैन बी एनीबडी, बट फाइनली वो स्टेक होल्डर आपको जो रिक्वायरमेंट देगा, पीओ भी वही रिक्वायरमेंट देगा, बिजनेस एनालिस्ट भी वही देगा, कुछ अलग नहीं देगा। तो मतलब idea रहेगा ना that we want this particular visual for this उसको मतलब किसको? सर मतलब जो स्टेक होल्डर्स जो हाँ, हैं हाँ। उनको तो एक आइडिया रहेगा ना कि मतलब ये पर्टिकुलर मतलब डेटा के लिए एक पर्टिकुलर विजुअल चाहिए, तो उनका भी आइडिया रहेगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। If he has already seen reports in Power BI and all, he may be having idea. अगर नहीं है, they may not be having idea. He will lean on you. He will ask you कि मुझे पता नहीं, आप बहुत साल से काम कर रहे हो, आप डिसाइड करो इसके लिए कौन सा विजुअल अच्छा रहेगा। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दे विल टेल कि कैसा होना चाहिए। चलो मैक्स टू मैक्स सबसे ज्यादा कौन सा विजुअल्स हम लोग यूज करेंगे? बहुत कम है, जैसे मैंने बताया होगा ना, टेबल, मैट्रिक्स, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, कार्ड विजुअल, बस इतने हैं। Yes, sir. Not at all on this. Sir, 98% ऑफ द टाइम बस यही विजुअल जो मैंने बोला था वही विजुअल यूज होता है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी होती है, मतलब इनिशियल बेसिस पे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड पे? देखो, प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस में क्या फर्क है, मैंने प्रोडक्ट बेस में भी काम किया है, सर्विस में भी काम कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट में क्या होता है ना, मतलब आप ही क्लाइंट हो, राइट, यू आर द कस्टमर, राइट, तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, आराम से कर सकते हो। ओके,
बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें 2 साल करने के बाद 3 साल करने के बाद आपके पास कुछ नया नहीं होगा सीखने के लिए। They might be using a data source called Azure Databricks हो गया, और Power BI they are यूज कर रहे हैं, या कुछ जो भी यूज कर रहे हैं, उनका प्रोसेस आपको 2 साल में समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। उसके बाद और कुछ नया नहीं होगा आपके पास। ओके, सेम थिंग यू आर कीप ऑन डूइंग डूइंग डूइंग। सर्विस बेस्ड में कंपनी में क्या होता है, आज मैं नेस्ले के लिए काम कर रहा हूँ, नेस्ले में मेरा डेटा सोर्स AWS है, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मैं कैस्ट्रॉल के लिए गया, उसमें डेटा सोर्स अज्योर है, वो खत्म हो गया, मैं फिर कोई और इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करने गया, वहां पे डेटा सोर्स अलग है। तो आई एम गेटिंग ए चांस टू वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। इवन दो मेरा मेन पावर बीआई है, बट स्टिल आई एम गेटिंग टू नो कि डिफरेंट डेटा सोर्सेस कैसे काम करते हैं, उसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, इन दैट वे यू विल लर्न। मे बी दूसरे कहीं when you are working for a different company, you got a chance to work on Power Apps, you got to work on Power Automate, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है छोटे मोटे। ओके, तो वैसा बेनिफिट आपको मिलता है when you are working in सर्विस स्पेस। लर्निंग कर्व काफी अच्छा है इसका मतलब। हाँ हाँ, प्रोडक्ट में भी है, बट एक टाइम के बाद वहां से निकलना चाहिए। थोड़ा सा नॉलेज लेके स्टेबिलिटी जो हो गया। हाँ हाँ, बोलना है तो बोलो। ज्यादा पैसा मिलता है कहाँ पे? क्यों? हमारा दोस्त को। तुम्हारा दोस्त कौन है? हाँ? Nothing like that. Okay, सर्विस बेस में आप मतलब यू कैन ग्रो, मतलब मच फास्टर। जब आपका नॉलेज बढ़ेगा, यू कैन वंस यू स्विच वन कंपनी यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। प्रोडक्ट बेस में इतना स्टार्टिंग में ज्यादा देते हैं, उसके बाद ज्यादा नहीं होता, आपका हाइट्स भी कम होता है। अच्छा, मतलब सर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उनमें कोई क्लाइंट नहीं होता, जैसे अभी आपने बताया, वो सिर्फ सर्विस बेस में रहता है। हाँ, प्रोडक्ट बेस में आप ही क्लाइंट हो ना। हाँ, ओके, सर्विस बेस में आई हैव रिसोर्सेज, आई एम गिविंग रिसोर्सेज टू द क्लाइंट। प्रोडक्ट बेस्ड क्या मतलब, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, मतलब जैसे नेस्ले हो गया तो सब खुद को प्रोडक्ट बनाती ना, तो वो फिर दूसरे दूसरे से क्यों ले रही है? हाँ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मुझे ज्यादा टाइम के लिए नहीं चाहिए वो डेटा एनालिस्ट, मुझे रिपोर्ट बनाने के लिए चाहिए, उसके बाद मे बी आई डू नॉट नीड हिम। ठीक है, अगर मैं हायर करके अपना खुद का टीम रखूंगा, आई मे हैव टू पे देम एवरी टाइम, काम हो ना हो हर हर बार मुझे पे करना है। बट इफ आई एम टेकिंग सर्विस बेस से मैं ले रहा हूँ, मेरा काम खत्म होने के बाद आई विल लीव देम। अगर मुझे वो पसंद भी नहीं आया, आई कैन इमीडिएटली आस्क फॉर ए रिप्लेसमेंट। प्रोडक्ट बेस में अगर मैं खुद का टीम बना रहा हूँ, आई कैन नॉट आस्क फॉर ए रिप्लेसमेंट, आई कैन नॉट फायर हिम जस्ट लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, okay then let's close for today, and we will see again. Thank you guys. Thank you, sir. Yeah, yeah. Bye. Bye.